امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب انسان نیکی کرتا ہے تو ایک سفید نقطہ اس کے قلب میں آتا ہے، جتنی وہ نیکیاں کرتا چلا جاتا ہے اس کا قلب سفید ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہ نیکی اس کو سجدے کی دعوت، ایک سجدہ جو انسان کرتا ہے وہ سب سے بڑی نیکی ہے، یہ ایک سجدہ اس کے قلب میں ایک سفید سپاٹ پیدا کرتا ہے۔ لیکن اسی کے مقابلے میں اگر ایک شخص گناہ کرتا ہے تو ایک گناہ اس کے قلب میں سیاہی کو پیدا کرتا ہے، گناہ پھیلتے جاتے ہیں، قلب سیاہ ہوتا جاتا ہے، اور قلب پھر جب پورا سیاہ ہو جائے تو خدا قرآن میں کہتا ہے پھر ہم نے ان قلوب پہ مہر لگا دی۔ اب یہ پلٹنے والے، کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا اچھے نصیب کس کے ہوتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے، دوسرے وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچے رکھو تاکہ پتہ چلے کہ تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ نمبر 2، کوئی کمزور شخص تمہاری بے عزتی کرے تو اسے بخش دو کہ بہادروں کا کام معاف کر دینا ہے، اور معاف کرنے والا اللہ کو بہت پسند ہے۔ نمبر 3، زندگی میں قسم قدم اور قلم بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے۔ الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں، اور امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب انسان نیکی کرتا ہے تو ایک سفید نقطہ اس کے قلب میں آتا ہے، جتنی وہ نیکیاں کرتا چلا جاتا ہے اس کا قلب سفید ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہ نیکی اس کو سجدے کی دعوت، ایک سجدہ جو انسان کرتا ہے وہ سب سے بڑی نیکی ہے، یہ ایک سجدہ اس کے قلب میں ایک سفید سپاٹ پیدا کرتا ہے۔ لیکن اسی کے مقابلے میں اگر ایک شخص گناہ کرتا ہے تو ایک گناہ اس کے قلب میں سیاہی کو پیدا کرتا ہے، گناہ پھیلتے جاتے ہیں، قلب سیاہ ہوتا جاتا ہے، اور قلب پھر جب پورا سیاہ ہو جائے تو خدا قرآن میں کہتا ہے پھر ہم نے ان قلوب پہ مہر لگا دی۔ اب یہ پلٹنے والے، کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا اچھے نصیب کس کے ہوتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے، دوسرے وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچے رکھو تاکہ پتہ چلے کہ تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ نمبر 2، کوئی کمزور شخص تمہاری بے عزتی کرے تو اسے بخش دو کہ بہادروں کا کام معاف کر دینا ہے، اور معاف کرنے والا اللہ کو بہت پسند ہے۔ نمبر 3، زندگی میں قسم قدم اور قلم بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے۔ الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں، اور میرے نبی مسجد میں صحابہ ہنس رہے تھے تو آپ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں تم جانو تو تمہارا ہنسنا بند ہو جائے، رونا زیادہ ہو جائے۔ تو سب صحابہ نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ آپ یہ کہہ کر واپس مڑے، دروازے تک نہیں پہنچے تھے کہ جبریل آ گیا کہ میرے محبوب تو نے میرے بندوں کو اتنا زیادہ ڈرا دیا مجھ سے، جا واپس جا، جیسے رولایا ہے ایسے ہی ہنسا کے آ۔ اللہ پاک تو ہمارے مالک خالق، ہمارے مہربان ہیں، اللہ کو نہیں سنائیں گے تو کس کو سنائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی مسلمان سے گناہ ہوتا ہے وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑاتا ہے کہ اللہ مجھ سے جرم ہو گیا، مجھے معاف کر دے، میں تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے، دیکھو بہت سے لوگوں سے گناہ ہوتا ہے، وہ معافی نہیں مانگتے، یہ اس لیے معافی مانگ رہا ہے کہ اسے پتا ہے کہ اس کا کوئی خدا ہے جو گناہ پہ سزا بھی دے سکتا ہے اور چاہے تو گناہ کو معاف بھی کر سکتا ہے۔
मेरे नबी ने दुनिया से जाते हुए तुम्हें दो बातें कही थी, तुमने दोनों को आग लगा दी। उन्होंने कहा था अस्सलाह, मेरी उम्मत नमाज न छोड़। अव्वल तो कोई पढ़ते नहीं है, पक्के नमाजी भी घरों में मुसल्ले बिठाए बैठे। मस्जिद की अजान आ रही है, 95% तो जाते नहीं है, 5% में फिर 50% घरों में मुसल्ले बिछा के बैठे होते हैं। नमाज गई, परवाह कोई नहीं। बेटे की नमाज चली गई, कोई परवाह कोई नहीं। वो इम्तिहान में फेल हो गया, बाप की भी नींद उड़ गई, माँ की भी नींद उड़ गई। उसने फजर भी नहीं पढ़ी, जोर भी नहीं पढ़ी, असर भी नहीं पढ़ी, मगरिब भी नहीं पढ़ी, इशा भी नहीं पढ़ी। माँ भी खुश, बाप भी खुश। कैसा बाप है ये, कैसी माँ है। तुम्हारे नबी ने जाते हुए कहा था अस्सलाह, नमाज न छोड़ना। हजरत अली का कौल है कि किसी पर भरोसा करना है तो आखिरी हद तक करो। यहाँ तो तुम्हें अच्छा दोस्त मिलेगा, यहाँ तो अच्छा सबक। عليكي جمال وقلبك صافي وابن حضرت علی ہی کا فرمان ہے کہ جس شخص نے ایک فرض روزہ چھوڑ دیا پھر قیامت تک اس کی قضا میں نفل روزے رکھتا رہا تو ایک روزے کا یہ سارے روزے بدلہ نہیں ہو سکتے۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا، ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری 3 باتیں بھاپ سکے، تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد، تمہارے غصے میں تمہارا پیار، تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ بے فکر ہو جاؤ، خدا مخلص دلوں کے ساتھ کبھی نا انصافی نہیں کرتا۔ حضرت علی کہتے ہیں میرا قد چھوٹا تھا اور میں بچہ تھا، ابھی 7-8 سال عمر تھی، اللہ کے رسول میرے صحن کے اندر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور فرمایا علی آجا یار سینے سے لگ جاؤ۔ تو حضرت علی کہتے ہیں میں دوڑ کے گیا، دوڑ کے میں نے جا کے سینہ رسول اللہ کے سینے سے لگایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں یہ میرا مقام ہے، 8 سال کی عمر میں سینہ لگایا تھا اور جب رسول اللہ کو قبر میں اتارا پھر بھی میرا ہی سینہ مصطفیٰ کے سینے سے لگاؤ۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ حضرت علی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اور یہاں مولا سے مراد دوست نہیں ہے، یہ ہم دوست کا ترجمہ کرتے ہیں آقا، سردار، جس کا میں سردار ہوں علی اس کے سردار ہیں۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا، ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری 3 باتیں بھاپ سکے، تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد، تمہارے غصے میں تمہارا پیار، تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ۔ حضرت علی کا قول ہے کہ کسی پر بھروسہ کرنا ہے تو آخری حد تک کرو، یہاں تو تمہیں اچھا دوست ملے گا، یہاں تو اچھا سبق۔ عليكي جمال وقلبك صافي وابن مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں محبت خوبصورت انسان سے نہیں ہوتی، بلکہ محبت جس سے ہوتی ہے وہ خوبصورت لگنے لگتا ہے۔ حضرت مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں جناب عمر فاروق کا زمانہ تھا، میرا بڑا دل کرتا تھا مجھے حضور کی زیارت ہو، میں درود پاک پڑھتا سو گیا، میرے نصیب دیکھو کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ اللہ کے محبوب نہ فجر کی جماعت کرا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرائی اور غلاموں کی طرف رخ نور پھیرا، ایک صحابی کے باغ میں تازہ کھجوریں پکی تھیں، وہ صحابی ٹوکرے میں ڈال کے حضور کی بارگاہ میں لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور اٹھائی اور اٹھا کے منہ میں رکھی، پھر حضور صحابہ کو دینے لگے، فرماتے ہیں قربان جائیں نمبر میرا بھی لگ گیا، کھجور کھائی، کچھ کھجور کا مزہ تھا، کچھ دست مصطفیٰ کا مزہ تھا، فرماتے ہیں بڑا ہی مزہ آیا، بڑا ہی سرور آیا، دل کرتا تھا کھجور ایک اور ملے، لیکن سب کو ایک ایک مل رہی تھی،
अदब का तकादा यही था कि मैं भी दूसरी का सवाल न करूं। अभी खजूर खा ही रहा था कि मेरी आंख खुल गई, फजर की अजान हो गई। फरमाते मैं उठा तो खजूर का जायका अभी भी मेरे मुंह में मौजूद था। फरमाते हैं दिल गरिफ्ता, दिल करता था आई या रात विसाल देवाली ते रब्बाए रात मुक्कन ना देवी। कहते हैं भारा दिन चढ़ गया, अजान फजर हो गई, सुबह सादिक तुलू हो गई। मैं उठा, वुजू किया, सुन्नत अदा की, मस्जिद में जाके नमाज के इंतजार में बैठ गया। फरमाते हैं फारूक आजम जमात कराने आए। इत्तेफाक देखें कि हजरत उमर ने भी वही सूरतें नमाज में शुरू कर दी जो रात ख्वाब में हुजूर ने नमाज के अंदर पढ़ी। मैं समझा ये इत्तेफाक है, लेकिन जनाब फारूक आजम ने जब नमाज पढ़ा के सलाम फेर के लोगों की तरफ रुख किया तो खजूरों का टोकरा भी आ गया। मैंने समझा ये भी इत्तेफाक है। फरमाते हैं उमर ने एक खजूर उठाई और बाकी बांटने लगे, और उमर ने एक खजूर मुझे भी दी। खजूर मैंने खाई, मजा मुझे बड़ा आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो अदब की वजह से नहीं मांगी थी। उमर तो अपना दोस्त था, अपना यार था, मुझसे हर काम में मशवरा लेता था। कहते मैंने फौरन कहा उमर जरा एक देना, एक खजूर और देना। फरमाते हैं फारूक आजम ने उठाई, मैं समझा मिलने लगी है, उठाई, और जब हजरत फारूक आजम ने खजूर बढ़ाई और पकड़ा किसी दूसरे सहाबी को दी और मुस्कुरा के मेरी तरफ देखा, फरमाने लगे अली यूं तो ना कर यार, अगर रात को तू हुजूर से दूसरी लेता तो मैं भी सवेरे तुझे दूसरी दे दे। अगर हुजूर से रात दूसरी लेते तो मैं भी तुम्हें सवेरे दूसरी दे देता। खाब मेरी विचाया माही ते मैं गल विच पा लिया बावां, लोग को डर दी मारी अख भी ना खोला किते फिर विछड़ ना जा। हज़रत अली फरमाने लगे मेरी 5 बातें याद कर लो, और फरमाने लगे ऊंटों पर बैठकर तलाश करने निकलोगे तो ये बातें तुम्हें मिलेंगी कहीं भी नहीं। हजरत अली बातें बयान करते हैं, फरमाते हैं पहली बात ये याद रखना, बंदे को उम्मीद सिर्फ अपने रब से रखनी चाहिए। हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु दूसरी बात बयान करते हैं, फरमाते हैं अपने गुनाहों से डरा करो। और तीसरा मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अगर तुम जाहिल हो ना, तुम्हें पता नहीं, तो इल्म के बारे में सवाल करने से कभी ना शर्माना। पूछ लेना फायदा होगा, किसी से बात कर लेना फायदा होगा, किसी से सीख लेना नफा हो जाएगा, किसी को मान लेना अपना उस्ताद, जिंदगी भर समझदार हो जाओगे, फैज याब हो जाओगे। और हजरत अली शेर खुदा चौथी बात इरशाद फरमाते हैं ये उलमा के लिए, फरमाया अगर आलिम को किसी मसले का इल्म ना हो तो गलत बात ना बताए, बल्कि कह दे वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। और 5वीं बात हजरत अली शेर खुदा इरशाद फरमाते हैं याद रखना, ईमान में सब्र की वही हैसियत है जो जिस्म में सर की हैसियत है। हजरत अली का कौल है कि किसी पर भरोसा करना है तो आखिरी हद तक करो, यहाँ तो तुम्हें अच्छा दोस्त मिलेगा, यहाँ तो अच्छा सबक। عليك جمال وقلبك صافي وابن हजरत अली ही का फरमान है कि जिस शख्स ने एक फ़र्ज रोज़ा छोड़ दिया फिर क़यामत तक उसकी क़ज़ा में नफल रोज़े रखता रहा तो एक रोज़े का ये सारे रोज़े बदला नहीं हो सकते। मौला अली इस्लाम ने फरमाया उन लोगों पर एतबार करो जो तुम्हारी 3 बातें भाप सके, तुम्हारी हंसी में पोशीदा दर्द, तुम्हारे गुस्से में तुम्हारा प्यार, तुम्हारी खामोशी में पोशीदा वजह। मौला अली इस्लाम ने फरमाया कि बेफिक्र हो जाओ, खुदा मुखलस दिलों के साथ कभी ना इंसाफी नहीं करता। हज़रत अली कहते हैं मेरा कद छोटा था और मैं बच्चा था, अभी 7-8 साल उम्र थी, अल्लाह के रसूल मेरे सहन के अंदर घुटनों के बल बैठ गए और फरमाया अली आजा यार सीने से लग जा। तो हजरत अली कहते हैं मैं दौड़ के गया, दौड़ के मैंने जाके सीना रसूलुल्लाह के सीने से लगाया। हजरत अली फरमाते हैं ये मेरा मकाम है। 8 साल की उम्र
उम्र में सीना लगाया था और जब रसूलुल्लाह को कब्र में उतारा फिर भी मेरा ही सीना मुस्तफा के सीने से लगाओ। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो जगह छोड़ दो जहाँ तुम्हारे एहसास और तुम्हारे अल्फाज की कदर ना हो, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। अली के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन कुन्तु मौला हो फ़अलियुन मौला हो, जिसका मैं मौला हूँ अली उसका मौला है। और यहाँ मौला से मुराद दोस्त नहीं है, ये हम दोस्त का तर्जुमा करते हैं आका, सरदार, जिसका मैं सरदार हूँ अली उसके सरदार हैं। मौला अली इस्लाम ने फरमाया, उन लोगों पर एतबार करो जो तुम्हारी तीन बातें भाप सके, तुम्हारी हंसी में पोशीदा दर्द, तुम्हारे गुस्से में तुम्हारा प्यार, तुम्हारी खामोशी में पोशीदा वजह। हजरत अली का कौल है कि किसी पर भरोसा करना है तो आखिरी हद तक करो, यहाँ तो तुम्हें अच्छा दोस्त मिलेगा, यहाँ तो अच्छा सबक। عليكي جمال وقلبك صافي وابن मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मोहब्बत खूबसूरत इंसान से नहीं होती, बल्कि मोहब्बत जिससे होती है वो खूबसूरत लगने लगता है। हजरत अली का कौल है कि किसी पर भरोसा करना है तो आखिरी हद तक करो, यहाँ तो तुम्हें अच्छा दोस्त मिलेगा, यहाँ तो अच्छा सबक। عليكي جمال وقلبك صافي وابن हज़रत अली ही का फरमान है कि जिस शख्स ने एक फ़र्ज रोज़ा छोड़ दिया फिर क़यामत तक उसकी क़ज़ा में नफल रोज़े रखता रहा तो एक रोज़े का ये सारे रोज़े बदला नहीं हो सकते। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेफिक्र हो जाओ, खुदा मुखलस दिलों के साथ कभी नाइंसाफी नहीं करता। मौला अली इस्लाम ने फरमाया, उन लोगों पर एतबार करो जो तुम्हारी तीन बातें भाप सके, तुम्हारी हंसी में पोशीदा दर्द, तुम्हारे गुस्से में तुम्हारा प्यार, तुम्हारी खामोशी में पोशीदा वजह। हज़रत अली कहते हैं मेरा कद छोटा था और मैं बच्चा था, अभी 7-8 साल उम्र थी, अल्लाह के रसूल मेरे सहन के अंदर घुटनों के बल बैठ गए और फरमाया अली आजा यार सीने से लग जा। तो हज़रत अली कहते हैं मैं दौड़ के गया, दौड़ के मैंने जाके सीना रसूलुल्लाह के सीने से लगाया। हज़रत अली फरमाते हैं ये मेरा मकाम है, 8 साल की उम्र में सीना लगाया था और जब रसूलुल्लाह को कब्र में उतारा फिर भी मेरा ही सीना मुस्तफा के सीने से लगाओ। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो जगह छोड़ दो जहाँ तुम्हारे एहसास और तुम्हारे अल्फाज की कदर ना हो, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। अली के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन कुन्तु मौला हो फ़अलियुन मौला हो, जिसका मैं मौला हूँ अली उसका मौला है। और यहाँ मौला से मुराद दोस्त नहीं है, ये हम दोस्त का तर्जुमा करते हैं आका, सरदार, जिसका मैं सरदार हूँ अली उसके सरदार हैं। मौला अली इस्लाम ने फरमाया, उन लोगों पर एतबार करो जो तुम्हारी तीन बातें भाप सके, तुम्हारी हंसी में पोशीदा दर्द, तुम्हारे गुस्से में तुम्हारा प्यार, तुम्हारी खामोशी में पोशीदा वजह। हजरत अली का कौल है कि किसी पर भरोसा करना है तो आखिरी हद तक करो, यहाँ तो तुम्हें अच्छा दोस्त मिलेगा, यहाँ तो अच्छा सबक। عليكي جمال وقلبك صافي وابن मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मोहब्बत खूबसूरत इंसान से नहीं होती, बल्कि मोहब्बत जिससे होती है वो खूबसूरत लगने लगता है। मौला अली अलैहिस्सलाम का एक कौल है,
हमेशा जिंदगी में ऐसे लोगों को पसंद करो कि जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। मौला कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जिंदा ऐसे रहो लोग तुमसे मिलना चाहे, और जब मर जाओ तो लोग तुम पर गिरिया करें। ये ना एक जुमला है हजरत अली का, उसे हमेशा याद रखिएगा। आप फरमाया करते थे ताल्लुक राबते से रहता है। आप खोल लें इस कौल को, जितना मर्जी खोल लें। आप फरमाया करते थे राबता रहे तो बेगाने भी अपने हो जाते हैं, और राबता न रहे तो अपने भी बेगाने हो जाते हैं। देखे ना, बहुत सारे लोगों की दोस्तियां लगती हैं, वो इतनी गहरी होती हैं कि रिश्तेदारियों में बदल जाती हैं। लेकिन बहुत सारे रिश्तेदार हैं, आप मिलना छोड़ दें उनसे तो गया ना ताल्लुक। फरमाते थे ताल्लुक कायम रहता है राबते से, राबता रखोगे तो ताल्लुक। शबे बरात को ना रात चढ़ते ही अल्लाह पहले आसमान पर जो उसकी शान के लायक है नुज़ूले जलाल फरमाता है, और पहला जुमला ये फरमाता है कोई माफी मांगने वाला? अल्लाह करे आपको समझ आए, यानी माफी देने वाला कह रहा है चलो आओ आओ इधर आओ, जरा माफी मांगो, मैं माफ करने आया हूं। मांगो माफी, है कोई माफी मांगने वाला? माफ कर देंगे। लैलातुल कदर है तो रात, शबे बरात है तो रात, शबे मेराज है तो रात। आखिर रात में कोई बात जरूर है। ये जो फकीर लोग होते हैं इनका हाल रात के वक्त ये हो जाता है कि सावन की काली रातों में जब बूंदाबांदी होती है, ये रात को बैठ के रोते हैं जब सारी दुनिया। शबे बरात को ना रात चढ़ते ही अल्लाह पहले आसमान पर जो उसकी शान के लायक है नुज़ूले जलाल फरमाता है, और पहला जुमला ये फरमाता है कोई माफी मांगने वाला? अल्लाह करे आपको समझ आए, यानी माफी देने वाला कह रहा है चलो आओ आओ इधर आओ, जरा माफी मांगो, मैं माफ करने आया हूं। मांगो माफी, है कोई माफी मांगने वाला? माफ कर देंगे। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, शब बरात की रात अपने घर में कोई मीठा ताम पकाओ और उस पे 1 मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर अपने मरहूमीन जो इस फानी जहान से इंतकाल कर चुके हैं उनको हदिया करो और उनकी मगफिरत के लिए दुआ मांगो। आप इस्लाम ने मौला अली को बुला के अपने साथ खड़ा करके अपना हाथ उनके हाथ के ऊपर रख के यूं सहाबा में बुलंद करके कहा, मन कुन्तु मौलाहु फाज़ा अली के मौला। और इससे पहले आप इस्लाम ने सूरह अज़ाब की आयत नंबर 6 तिलावत की, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। नबी सरपरस्त हैं, हक रखते हैं जानों से भी बढ़ के उम्मतियों के ऊपर। क्यों? उम्मतियों का काम है कि नबी को बचाने के लिए अपनी जान दे। इतना हक है, अपने माँ बाप औलाद सबसे बढ़ के अजीज समझना, जो बुखारी मुस्लिम में हदीस सबसे ज्यादा हक रखते हैं। ये आयत आपने तिलावत करके कहा कि मेरे सहाबा क्या तुम मेरा हक के विलायत या हक के सरपरस्ती अपने ऊपर तस्लीम करते हो? सबने कहा भला यार। तो आपने जब ये आयत तिलावत की सबने कहा भला यार, कोई शक नहीं। तो आपने फिर फरमाया मन कुन्तु मौला हूं, फिर जिसका सरपरस्त और आका और मौला मैं हूं, अली मौला हूं, फिर अली भी उसका मौला है। और फिर आपने इसी हालत में कहा अल्लाह उससे मोहब्बत रख जो अली से मोहब्बत रख, और उससे दुश्मनी रख जो अली से दुश्मनी। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस शख्स के दुश्मन ना हो और सब दोस्त हो तो उस जैसा कोई मुनाफिक नहीं, क्योंकि दुश्मन उसके होते हैं जो हक की बात करता है। मौला अली ने खोल के फरमाया शाबान की 15वीं रात को रात इबादत करना और सवेरे रोजा रखना। शबे बरात को ना रात चढ़ते ही अल्लाह पहले आसमान पर नुज़ूले जलाल फरमाता है, और पहला जुमला ये फरमाता है कोई माफी मांगने वाला? अल्लाह करे आपको समझ आए, यानी माफी देने वाला कह रहा है चलो आओ आओ इधर आओ, जरा माफी मांगो, मैं माफ करने आया हूं। हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने कहा था हुजूर पैसे कोई नहीं, फरमाया सज्जन वफादार है। अर्ज़ की हुजूर हैं तो वफादार, फरमाया फिर छोड़ पैसों को, सबसे कीमती अच्छे दोस्त होते हैं, सबसे कीमती दौलत, इन्हें संभाल के रख, जाया न कर बैठना। मौला अली फरमाते हैं, अगर जिंदगी को खूबसूरत बनाना है तो सहना सीखो,
नजर अंदाज करना सीखो, खामोश रहना सीखो और अकेला रहना सीखो। हजरत अली फरमाने लगे, अपने रब के अलावा किसी से उम्मीद वबस्ता न करना। और फरमाया, अगर डरना हुआ ना कभी तो अपने गुनाहों से डरना। उम्मीदें अपने रब से, उससे मांगो, उसके हुजूर बैठो, उसकी जात पर तुम अपनी उम्मीदें वबस्ता करो, वो तुम्हें नवाजेगा, वो तुम्हें देगा। और अपने गुनाहों से डरो। हजरत अली फरमाया करते थे, तुझे जो चीज तबाह करेगी वो तेरे गुनाह है। डर अपने गुनाहों से, डर अपनी गलतियों से। हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, जनाब उमर फारूक का ज़माना था, मेरा बड़ा दिल करता था मुझे हुजूर की ज़ियारत हो। मैं दुरूद पाक पढ़ता सो गया। मेरे नसीब देखो कि मैं ख्वाब देखता हूँ कि अल्लाह के महबूब ना फजर की जमात करा रहे हैं। फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात कराई और गुलामों की तरफ रुखे नूर फेरा। एक सहाबी के बाग में ताज़ा खजूरें पकी थी, वो सहाबी टोकरे में डाल के हुजूर की बारगाह में लाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खजूर उठाई और उठा के मुंह में रखी, फिर हुजूर सहाबा को देने लगे। फरमाते हैं, कुर्बान जाए नंबर मेरा भी लग गया। खजूर खाई, कुछ खजूर का मजा था, कुछ दस्ते मुस्तफ़ा का मजा था। फरमाते हैं, बड़ा ही मजा आया, बड़ा ही सुरूर आया। दिल करता था खजूर एक और मिले, लेकिन सबको एक एक मिल रही थी। अदब का तकादा यही था कि मैं भी दूसरी का सवाल न करूं। अभी खजूर खा ही रहा था कि मेरी आंख खुल गई, फजर की अजान हो गई। फरमाते मैं उठा तो खजूर का जायका अभी भी मेरे मुंह में मौजूद था। फरमाते हैं, दिल गरिफ्ता, दिल करता था आई या रात विशाल देवाली ते रब्बाए रात मुक्कन ना देवी। कहते हैं, भारा दिन चढ़ गया, अजान फजर हो गई, सुबह सादिक तुलू हो गई। मैं उठा, वुजू किया, सुन्नत अदा की, मस्जिद में जाके नमाज के इंतजार में बैठ गया। फरमाते हैं, फारूक आजम जमात कराने आए। इत्तेफाक देखें कि हजरत उमर ने भी वही सूरतें नमाज में शुरू कर दी जो रात ख्वाब में हुजूर ने नमाज के अंदर पढ़ी। मैं समझा ये इत्तेफाक है, लेकिन जनाब फारूक आजम ने जब नमाज पढ़ा के सलाम फेर के लोगों की तरफ रुख किया तो खजूरों का टोकरा भी आ गया। मैंने समझा ये भी इत्तेफाक है। फरमाते हैं, उमर ने एक खजूर उठाई और बाकी बांटने लगे, और उमर ने एक खजूर मुझे भी दी। खजूर मैंने खाई, मजा मुझे बड़ा आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो अदब की वजह से नहीं मांगी थी। उमर तो अपना दोस्त था, अपना यार था, मुझसे हर काम में मशवरा लेता था। कहते मैंने फौरन कहा, उमर जरा एक देना, एक खजूर और देना। फरमाते हैं, फारूक आजम ने उठाई, मैं समझा मिलने लगी है, उठाई, और जब हजरत फारूक आजम ने खजूर बढ़ाई और पकड़ा किसी दूसरे सहाबी को दी और मुस्कुरा के मेरी तरफ देखा। फरमाने लगे, अली यूं तो ना कर यार, अगर रात को तू हुजूर से दूसरी लेता तो मैं भी सवेरे तुझे दूसरी दे दे। अगर हुजूर से रात दूसरी लेते तो मैं भी तुम्हें सवेरे दूसरी दे देता। खाब मेरी विचाया माही ते मैं गल विच पा लिया बावां। लोग को डर दी मारी अख भी ना खोला किते फिर विछड़ ना जा। हज़रत अली फरमाने लगे, मेरी 5 बातें याद कर लो। और फरमाने लगे, ऊंटों पर बैठकर तलाश करने निकलोगे तो ये बातें तुम्हें मिलेंगी कहीं भी नहीं। हजरत अली बातें बयान करते हैं। फरमाते हैं, पहली बात ये याद रखना, बंदे को उम्मीद सिर्फ अपने रब से रखनी चाहिए। हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु दूसरी बात बयान करते हैं। फरमाते हैं, अपने गुनाहों से डरा करो। तीसरा मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर तुम जाहिल हो ना, तुम्हें पता नहीं, तो इल्म के बारे में सवाल करने से कभी ना शर्माना। पूछ लेना, फायदा होगा। किसी से बात कर लेना, फायदा होगा। किसी से सीख लेना, नफा हो जाएगा। किसी को मान लेना अपना उस्ताद, जिंदगी भर समझदार हो जाओगे, फैज याब हो जाओगे। और हजरत अली शेर खुदा चौथी बात इरशाद फरमाते हैं, ये उलमा के लिए। फरमाया, अगर आलिम को किसी मसले का इल्म ना हो तो गलत बात ना बताए, बल्कि कह दे वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। और 5वीं बात हजरत अली शेर खुदा इरशाद फरमाते हैं, याद रखना, ईमान में सब्र की वही हैसियत है जो जिस्म में सर की हैसियत है।
مولا علی کا فرمان ہے کہ جس طرح انسان کے اندر سے جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، بالکل اسی طرح اگر انسان کے اندر سے احساس نکل جائے تو وہ انسان نہیں رہتا۔ ایک شخص نے پوچھ لیا حضرت مولا علی سے کہ حضور یہ آپ کا رنگ انوکھا ہے کہ گرمیوں کے اندر آپ اتنے بھاری کپڑے پہن لیتے ہیں کہ دیکھ دیکھ کے گرمی لگتی ہے، تو آپ کو گرمی سردی کا احساس نہیں ہوتا؟ حضرت مولا علی شیر خدا فرمانے لگے مجھے میرے نبی پاک نے دعا دی، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا دی تھی، فرمایا تھا اے اللہ اسے گرمی اور سردی سے محفوظ رکھ۔ حضرت علی کہتے ہیں میرا قد چھوٹا تھا اور میں بچہ تھا، ابھی 7-8 سال عمر تھی، اللہ کے رسول میرے صحن کے اندر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور فرمایا علی آجا یار سینے سے لگ جا۔ تو حضرت علی کہتے ہیں میں دوڑ کے گیا، دوڑ کے میں نے جا کے سینہ رسول اللہ کے سینے سے لگایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں یہ میرا مقام ہے، 8 سال کی عمر میں سینہ لگایا تھا اور جب رسول اللہ کو قبر میں اتارا پھر بھی میرا ہی سینہ مصطفیٰ کے سینے سے لگا ہوا۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں دوستی کا بھرم صرف وہی لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو۔ جب خیبر فتح ہوا نا، حضرت مولا علی نے ایک ہاتھ سے خیبر کا دروازہ توڑا، یعنی دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر فتح کیا، فتح خیبر کی خوشیاں منائی جا رہی تھیں۔ حضرت جعفر طیار بھی حبشہ سے ہجرت کر کے مدینے آ گئے، کہنے لگے وہیں رہیں گے، غلام فریدہ ہوتے کی وسنا جتے یار نظر نہ آوے، یہاں آ گئے ہجرت کر کے۔ اب ذرا بات سننا کتنی مزیدار ہے۔ حضرت جعفر آئے، حضور اٹھے، سینے سے لگایا، یوں پیشانی پہ نا یہاں نبی پاک نے بوسہ دیا، اور پتہ ہے حضور کیا فرماتے ہیں؟ قربان جاؤں محبوب کے ان لفظوں پر۔ حضور فرمانے لگے سمجھ نہیں آ رہی مجھے، یا رسول اللہ کس بات کی؟ فرمایا سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے خیبر فتح ہونے کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر کے آنے کی زیادہ خوشی ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی، خوشی کس بات کی ہے؟ ان کے آنے کی زیادہ ہے یا خیبر فتح ہونے کی؟ دیکھو اس شخص کا نصیبہ کتنا اونچا ہے، دیکھو بلندی کتنی زیادہ۔ اور پتہ میرے نبی پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں 4 لوگوں سے پیار کروں۔ حضور کس سے؟ تو پہلے 3 مرتبہ نبی پاک نے ایک ہی شخص کا نام لیا، فرمایا علی سے، علی سے، علی سے، پھر فرمایا ابو ذر غفاری سے، پھر فرمایا جناب مقداد سے، پھر فرمایا سلمان فارسی سے۔ خطبہ جمعہ ہو رہا تھا تو جناب علی المرتضیٰ نے جمعہ روک کے فرمایا بتاؤ بھائی مسلمانوں سب سے بہادر کون ہے؟ بتاؤ۔ لوگوں نے کہا حضور آپ ہی سب سے بہادر ہے، زمانہ جانتا ہے۔ تو جناب علی رو پڑے، فرمانے لگے نہیں میں تمہیں بتاتا ہوں بہادر کون۔ جناب علی المرتضیٰ فرمانے لگے میں بتاتا ہوں بہادر کون ہے۔ جناب کون ہے؟ فرمانے لگے ایک دن ایسا بھی آیا کہ مکے کے سارے سردار کٹھے ہو کے محبوب پاک پہ حملہ کرنے لگے، حضور کو گرا لیا نبی پاک۔ کہتے ہیں حضرت علی کے کفار مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا لیا اور معاذ اللہ تشدد کرنے لگے۔ فرماتے ہیں کوئی زور زور سے پکار رہا تھا، میرے کانوں میں آواز آئی جب میں گھر میں تھا، کوئی زور زور سے پکار رہا تھا، اور وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کوئی ابو بکر کو خبر کرو، کوئی صدیق اکبر کو بتاؤ کہ قریش مکہ محبوب علیہ السلام کو تکلیف دے رہے ہیں، بتاؤ۔ حضرت علی کہتے ہیں جب تک میں باہر نکلا تو میں نے ابو بکر کو دوڑتے ہوئے دیکھا، صدیق اکبر کے پیروں میں جوتا کوئی نہیں، سر پہ ٹوپی کوئی نہیں، تینوں لب دیاں آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہیں کوئی۔ کہتے ہیں بھاگتے جا رہے ہیں، اور پھر جب صدیق اکبر پہنچے تو میں دوڑا آ رہا تھا اور منظر دیکھ بھی رہا۔ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں جناب عمر فاروق کا زمانہ تھا، میرا بڑا دل کرتا تھا مجھے حضور کی زیارت ہو، میں درود پاک پڑھتا سو گیا، میرے نصیب دیکھو کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ اللہ کے محبوب نہ فجر کی جماعت کرا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرائی اور غلاموں کی طرف رخ نور پھیرا، ایک صحابی کے باغ میں تازہ کھجوریں پکی تھیں، وہ صحابی ٹوکرے میں ڈال کے حضور کی بارگاہ میں لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور اٹھائی اور اٹھا کے منہ میں رکھی، پھر حضور صحابہ کو دینے لگے۔ فرماتے ہیں قربان جائیں نمبر میرا بھی لگ گیا، کھجور کھائی، کچھ کھجور کا مزہ تھا، کچھ دست مصطفیٰ کا مزہ تھا۔ فرماتے ہیں بڑا ہی مزہ آیا، بڑا ہی سرور آیا، دل کرتا تھا کھجور ایک اور ملے۔
लेकिन सबको एक एक मिल रही थी। अदब का तकादा यही था कि मैं भी दूसरी का सवाल न करूं। अभी खजूर खा ही रहा था कि मेरी आंख खुल गई, फजर की अजान हो गई। फरमाते मैं उठा तो खजूर का जायका अभी भी मेरे मुंह में मौजूद था। फरमाते हैं दिल गरिफ्ता, दिल करता था आई या रात विशाल देवाली ते रब्बाए रात मुक्कन ना देवी। कहते हैं भारा दिन चढ़ गया, अजान फजर हो गई, सुबह सादिक तुलू हो गई। मैं उठा, वुजू किया, सुन्नत अदा की, मस्जिद में जाके नमाज के इंतजार में बैठ गया। फरमाते हैं फारूक आजम जमात कराने आए। इत्तेफाक देखें कि हजरत उमर ने भी वही सूरतें नमाज में शुरू कर दी जो रात ख्वाब में हुजूर ने नमाज के अंदर पढ़ी। मैं समझा ये इत्तेफाक है, लेकिन जनाब फारूक आजम ने जब नमाज पढ़ा के सलाम फेर के लोगों की तरफ रुख किया तो खजूरों का टोकरा भी आ गया। मैंने समझा ये भी इत्तेफाक है। फरमाते हैं उमर ने एक खजूर उठाई और बाकी बांटने लगे, और उमर ने एक खजूर मुझे भी दी। खजूर मैंने खाई, मजा मुझे बड़ा आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो अदब की वजह से नहीं मांगी थी। उमर तो अपना दोस्त था, अपना यार था, मुझसे हर काम में मशवरा लेता था। कहते मैंने फौरन कहा उमर जरा एक देना, एक खजूर और देना। फरमाते हैं फारूक आजम ने उठाई, मैं समझा मिलने लगी है, उठाई, और जब हजरत फारूक आजम ने खजूर बढ़ाई और पकड़ा किसी दूसरे सहाबी को दी और मुस्कुरा के मेरी तरफ देखा, फरमाने लगे अली यूं तो ना कर यार, अगर रात को तू हुजूर से दूसरी लेता तो मैं भी सवेरे तुझे दूसरी दे दे। अगर हुजूर से रात दूसरी लेते तो मैं भी तुम्हें सवेरे दूसरी दे देता। खाब मेरी विचाया माही ते मैं गल विच पा लिया बावां, लोग को डर दी मारी अख भी ना खोला किते फिर विछड़ ना जा। हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि एक आराबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया और उसने बार बार सवाल किया। आराबी ने बार बार सवाल किया ना तो फिर हुजूर खुद फरमाने लगे चल फिर मांग, तू क्या मांगता है। मौला अली फरमाते हमें बड़ा रश्क आया, हमें बड़ा नाज आया। हमने कहा क्या बात है। हुजूर ने फरमाया मांग, क्या मांगता है। अब ये नबी पाक से जन्नत मांगेगा और दुनिया में बैठे बैठे अपने लिए जन्नत की टिकट बुक करा लेगा, ये जन्नत के अंदर बेहतरीन महल अपने लिए अलाट करा लेगा। लेकिन बड़ा ही बोला था, कहने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने सफर करना है, मुझे सवारी के लिए एक ऊंट दे दे। तो हजरत अली फरमाते हैं उसने सवाल तो किया पर जो हमारी तबीयत थी उस मुताबिक उसने नहीं किया, यानी जिस तरह का दरवाजा था उस तरह की भीख नहीं मांगी। उसने ऊंट मांगा, हुजूर ने फरमाया चल दिया तुझे। फरमाया चल ऊंट दे दिया, अब तू कुछ और भी मांग ले। हजरत अली कहने लगे लो बड़े नसीब वाला, एक चांस और मिला। तो कहने लगा हुजूर इस तरह करें जो ऊंट पर कजावा बांधा जाता है वो भी दे दे। तो हजरत अली शेर खुदा फरमाने लगे हमने कहा तेरा अल्लाह भला करे, तू कहां अड़ गया। हुजूर ने ना मुस्कुरा के एक तीसरा मौका दिया, फरमाया चल तुझे कजावा भी दिया, कुछ और मांग ले। कहने लगा हुजूर सफर बड़ा लंबा है, आने जाने का खर्चा भी दे दे। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, फरमाया जा तुझे दिया। हुजूर फरमाने लगे ओ बोले तूने क्या मांगा, ऊंट, कजावा, खर्चा। और काश मैंने तुझे कहा था तूने कुछ मांगा होता। मेरे रसूल पाक अपनी उम्मत की तवज्जो दिलाते हैं। हुजूर फरमाते हैं तुम्हारे नबी के पास बड़ा कुछ है, आओ आओ मांग लो, अब तंगी ये दामा पे ना जा, और भी कुछ मांग है। आज वो माइल बात आ, और भी कुछ मांग, ना बहस में उलझ आ, तलब कर मांग। मांगा फिर बरेली के इमाम ने, कहने लगे माह मदीना अपनी तजल्ली अता करें। ये ढलती चांदनी तो पहर दो पहर की है। हज़रत अली फरमाने लगे मेरी 5 बातें याद कर लो, और फरमाने लगे ऊंटों पर बैठकर तलाश करने निकलोगे तो ये बातें तुम्हें मिलेंगी कहीं भी नहीं। हजरत अली बातें बयान करते हैं, फरमाते हैं पहली बात ये याद रखना बंदे को उम्मीद सिर्फ अपने रब से रखनी चाहिए। हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु दूसरी बात बयान करते हैं, फरमाते हैं अपने गुनाहों से डरा करो। तीसरा मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अगर तुम जाहिल हो ना, तुम्हें पता नहीं, तो इल्म के बारे में सवाल करने से कभी ना शर्माना। पूछ लेना फायदा होगा, किसी से बात कर लेना फायदा होगा, किसी से सीख लेना नफा हो जाएगा।
किसी को मान लेना अपना उस्ताद, जिंदगी भर समझदार हो जाओगे, फैज याब हो जाओगे। और हजरत अली शेर खुदा चौथी बात इरशाद फरमाते हैं, ये उलमा के लिए फरमाया, अगर आलिम को किसी मसले का इल्म ना हो तो गलत बात ना बताए, बल्कि कह दे वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। और पांचवी बात हजरत अली शेर खुदा इरशाद फरमाते हैं, याद रखना ईमान में सब्र की वही हैसियत है जो जिस्म में सर की हैसियत है। किसी ने मौला अली शेर खुदा से पूछा, हजरत कुरान पाक की सबसे आला आयत कौन सी है? सबसे, कुरान मजीद में हर लफ्ज ही आला है, हर हरफ ही, हर लफ्ज ही, क्या बात है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, हर बात आला। लेकिन हजरत अली से पूछा कि आपके नजदीक कौन सी आयत आला है, तो जरा गौर करना, शेर की बात तो शेरों जैसी। मौला अली फरमाने लगे, कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, फरमाया तुम्हें दुनिया में जो भी मुसीबत आती है तुम्हारे हाथों के करतूतों की वजह से आती है, वयाफु अन कसीर, बहुत सारी तो मैं माफ कर देता हूँ। तो हजरत अली कहने लगे, ये सबसे आला आयत है मेरी नजर में। लोग कहने लगे, हुजूर हम तो समझे थे कि शफात वाली आयत को आप आला कहेंगे, या जो अल्लाह कहता है ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, उसको आप आला कहेंगे, तो आप इस आयत को आला कह रहे हैं कि तुम्हें जो तकलीफ आती है तुम्हारी अपने हाथ की कमाई के सबब से आती है, इसको आप आला कह रहे हैं। तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, मेरे भाइयों जरा गौर करके इस आयत को पढ़ो। रब फरमाते हैं, तुम जो गलत हरकत करते हो उसकी सजा दुनिया में तुम्हें किसी। हजरत अली ही का फरमान है कि जिस शख्स ने एक फ़र्ज रोज़ा छोड़ दिया फिर क़यामत तक उसकी कज़ा में नफल रोज़े रखता रहा, तो एक रोज़े का ये सारे रोज़े बदला नहीं हो सकते। हज़रत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने कहा था, हुजूर पैसे कोई नहीं, फरमाया सज्जन वफादार है। अर्ज की हुजूर हैं तो वफादार, फरमाया फिर छोड़ पैसों को, सबसे कीमती अच्छे दोस्त होते हैं, सबसे कीमती दौलत, इन्हें संभाल के रख, जाया न कर बैठना। हज़रत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने कहा था, हुजूर पैसे कोई नहीं, फरमाया सज्जन वफादार है। अर्ज की हुजूर हैं तो वफादार, फरमाया फिर छोड़ पैसों को, सबसे कीमती अच्छे दोस्त होते हैं, सबसे कीमती दौलत, इन्हें संभाल के रख, जाया न कर बैठना। हजरत अली ही का फरमान है कि जिस शख्स ने एक फ़र्ज रोज़ा छोड़ दिया फिर क़यामत तक उसकी कज़ा में नफल रोज़े रखता रहा, तो एक रोज़े का ये सारे रोज़े बदला नहीं हो सकते। मौला कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जिंदा ऐसे रहो लोग तुमसे मिलना चाहे, और जब मर जाओ तो लोग तुम पर गिरिया करें। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप किसी को भी दो चीजों के लिए कभी मजबूर नहीं कर सकते, एक मोहब्बत, दूसरा इबादत। ये दोनों दिल से होती है, ये दोनों का रिश्ता रूह से जुदा होता है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप किसी को भी दो चीजों के लिए कभी मजबूर नहीं कर सकते, एक मोहब्बत, दूसरा इबादत। ये दोनों दिल से होती है, ये दोनों का रिश्ता रूह से जुदा होता है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप किसी को भी दो चीजों के लिए कभी मजबूर नहीं कर सकते, एक मोहब्बत, दूसरा इबादत। ये दोनों दिल से होती है, ये दोनों का रिश्ता रूह से जुदा होता है। हजरत अली का फरमान है, तीन चीजें बाकायदगी से पढ़ो, नमाज, कुरान और दुरूद, तीन चीजें काबू में रखो, जबान, नफ्स और गुस्सा, तीन चीजें हमेशा याद रखो, मौत, एहसान और नसीहत, तीन चीजें जलील करती हैं, चोरी, चुगली और झूठ, तीन चीजें छोटी ना समझो, फर्ज, कर्ज और मर्ज, तीन चीजें पाक रखो, जिस्म, लिबास और ख्याल। अली फरमाते हैं, तू घर में खाना खाने लगे और तेरे सामने दो बर्तनों में तो अलहदा अलहदा खाने आ जाएं,
तो समझ ले आज किसी और का रिज्क तेरे दस्तरखान पे आ गया है। आज कोई भूखा सोया है और उसके हिस्से का तू खा रहा है। हजरत अली से किसी ने कहा था मेरे दिल पे बोझ बड़ा रहता है, तो हजरत अली फरमाने लगे ना लोगों का मजाक उड़ाया कर, ना लोगों पर ज्यादा गुस्सा किया कर, इसलिए कि जब तू लोगों का मजाक उड़ाएगा तो फिर भी तेरा दिल उसका बोझ सह नहीं सकेगा। आप किसी पर गुस्सा करके ना जितने मर्जी भी आप दलेर है, तकलीफ आपको भी होती है। उसने कहा दिल बेचैन रहता है, तो ये नुस्खा मेरे मौला कायनात का शेर खुदा का याद रखना, दिल सही रहेगा। हज़रत अली ने फरमाया सब्र की दो सूरतें हैं, जो नापसंद हो उसे बर्दाश्त करना और जो पसंद हो उसका इंतज़ार करना। ये बड़ा मशहूर कौल है हजरत अली का, याद रखना। आप फरमाया करते थे इल्म जो है वो माल से हमेशा बेहतर है। एक शख्स ने कहा हुजूर थोड़ी सी बात खोल दें, तो आप फरमाने लगे माल तो फिरौन की विरासत है और इल्म नबियों की विरासत। हजरत अली ही का फरमान है कि जिस शख्स ने एक फ़र्ज रोज़ा छोड़ दिया फिर क़यामत तक उसकी क़ज़ा में नफल रोज़े रखता रहा तो एक रोज़े का ये सारे रोज़े बदला नहीं हो सकते। हज़रत अली फरमाने लगे अपने रब के अलावा किसी से उम्मीद वबस्ता न करना, और फरमाया अगर डरना हुआ ना कभी तो अपने गुनाहों से डरना। उम्मीदें अपने रब से, उससे मांगो, उसके हुजूर बैठो, उसकी जात पर तुम अपनी उम्मीदें वबस्ता करो, वो तुम्हें नवाजेगा, वो तुम्हें देगा, और अपने गुनाहों से डरो। हज़रत अली फरमाया करते थे तुझे जो चीज तबाह करेगी वो तेरे गुनाह है, डर अपने गुनाहों से। अगर तुम परहेजगार रहना चाहती हो तो किसी अजनबी शख्स से नरम लहजे में बात न करो, ताकि वो शख्स जिसके दिल में किसी तरह का रोग है कोई उम्मीद न पैदा कर ले, और दस्तूर के मुताबिक बात किया करो, और अपने घरों में ठहरी रहो, और जिस तरह पहले जाहिलियत के दिनों में ज़ेब व ज़ीनत की नुमाइश की जाती थी उस तरह इजहार ज़ीनत न करो, और नमाज पढ़ती रहो और ज़कात देती रहो, और अल्लाह और उसके रसूल की फर्माबरदारी करती रहो। हजरत अली का कौल है कि जिससे दोस्ती रखो उससे ये उम्मीद मत रखो कि वो तुमको कुछ देगा, जब दोस्ती रखते हो तो ये तुम सोचो कि तुम उसको क्या दोगे। हजरत अली का कौल है कि किसी पर भरोसा करना है तो आखिरी हद तक करो, यहाँ तो तुम्हें अच्छा दोस्त मिलेगा, यहाँ तो अच्छा सबक। हजरत अली ही का फरमान है कि जिस शख्स ने एक फ़र्ज रोज़ा छोड़ दिया फिर क़यामत तक उसकी क़ज़ा में नफल रोज़े रखता रहा तो एक रोज़े का ये सारे रोज़े बदला नहीं हो सकते। मौला अली इस्लाम ने फरमाया उन लोगों पर एतबार करो जो तुम्हारी तीन बातें भाप सके, तुम्हारी हंसी में पोशीदा दर्द, तुम्हारे गुस्से में तुम्हारा प्यार, तुम्हारी खामोशी में पोशीदा वजह। मौला अली इस्लाम ने फरमाया कि बेफिक्र हो जाओ, खुदा मुखलस दिलों के साथ कभी ना इंसाफी नहीं करता। हज़रत अली कहते हैं मेरा कद छोटा था और मैं बच्चा था, अभी 7-8 साल उम्र थी, अल्लाह के रसूल मेरे सहन के अंदर घुटनों के बल बैठ गए और फरमाया अली आजा यार सीने से लग जा। तो हज़रत अली कहते हैं मैं दौड़ के गया, दौड़ के मैंने जाके सीना रसूलुल्लाह के सीने से लगाया। हज़रत अली फरमाते हैं ये मेरा मकाम है, 8 साल की उम्र में सीना लगाया था और जब रसूलुल्लाह को कब्र में उतारा फिर भी मेरा ही सीना मुस्तफा के सीने से लगाओ। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो जगह छोड़ दो जहाँ तुम्हारे एहसास और तुम्हारे अल्फाज की कदर ना हो, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। हज़रत अली के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन
مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اور یہاں مولا سے مراد دوست نہیں ہے، یہ ہم دوست کا ترجمہ کرتے ہیں آقا، سردار، جس کا میں سردار ہوں علی اس کے سردار ہیں۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری تین باتیں بھانپ سکے، تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد، تمہارے غصے میں تمہارا پیار، تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ۔ حضرت علی کا قول ہے کہ کسی پر بھروسہ کرنا ہے تو آخری حد تک کرو، یہاں تو تمہیں اچھا دوست ملے گا، یہاں تو اچھا سبق۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں محبت خوبصورت انسان سے نہیں ہوتی، بلکہ محبت جس سے ہوتی ہے وہ خوبصورت لگنے لگتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا ایک قول ہے، ہمیشہ زندگی میں ایسے لوگوں کو پسند کرو کہ جن کا دل چہرے سے زیادہ خوبصورت ہو۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں زندہ ایسے رہو لوگ تم سے ملنا چاہے، اور جب مر جاؤ تو لوگ تم پر گریہ کریں۔ یہ نا ایک جملہ ہے حضرت علی کا، اسے ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ آپ فرمایا کرتے تھے تعلق رابطے سے رہتا ہے، آپ کھول لیں اس قول کو، جتنا مرضی کھول لیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے رابطہ رہے تو بیگانے بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اور رابطہ نہ رہے تو اپنے بھی بیگانے ہو جاتے ہیں۔ لیکن نا بہت سارے لوگوں کی دوستیاں لگتی ہیں، وہ اتنی گہری ہوتی ہیں کہ رشتہ داریوں میں بدل جاتی ہیں، لیکن بہت سارے رشتہ دار ہیں آپ ملنا چھوڑ دیں ان سے تو گیا نا تعلق۔ فرماتے تھے تعلق قائم رہتا ہے رابطے سے، رابطہ رکھو گے تو تعلق۔ شب برات کو نا رات چڑھتے ہی اللہ پہلے آسمان پر جو اس کی شان کے لائق ہے نزول جلال فرماتا ہے، اور پہلا جملہ یہ فرماتا ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، یعنی معافی دینے والا کہہ رہا ہے چلو آؤ ادھر آؤ ذرا معافی مانگو، میں معاف کرنے آیا ہوں۔ مانگو معافی، ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ معاف کر دیں گے۔ لیلۃ القدر ہے تو رات، شب برات ہے تو رات، شب معراج ہے تو رات، آخر رات میں کوئی بات ضرور ہے۔ یہ جو فقیر لوگ ہوتے ہیں ان کا حال رات کے وقت یہ ہو جاتا ہے کہ سامن کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، یہ رات کو بیٹھ کے روتے ہیں جب ساری دنیا۔ شب برات کو نا رات چڑھتے ہی اللہ پہلے آسمان پر جو اس کی شان کے لائق ہے نزول جلال فرماتا ہے، اور پہلا جملہ یہ فرماتا ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، یعنی معافی دینے والا کہہ رہا ہے چلو آؤ ادھر آؤ ذرا معافی مانگو، میں معاف کرنے آیا ہوں۔ مانگو معافی، ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ معاف کر دیں گے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا شب برات کی رات اپنے گھر میں کوئی میٹھا طعام پکاؤ اور اس پہ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے مرحومین جو اس فانی جہان سے انتقال کر چکے ہیں ان کو ہدیہ کرو اور ان کی مغفرت کے لیے دعا مانگو۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کے دشمن نہ ہو اور سب دوست ہوں تو اس جیسا کوئی منافق نہیں، کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کرتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا صبر کی 2 صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ یہ بڑا مشہور قول ہے حضرت علی کا، یاد رکھنا۔ آپ فرمایا کرتے تھے علم جو ہے وہ مال سے ہمیشہ بہتر ہے۔ ایک شخص نے کہا حضور تھوڑی سی بات کھول دیں، تو آپ فرمانے لگے مال تو فرعون کی وراثت ہے،
اور علم نبیوں کی وراثت۔ حضرت علی ہی کا فرمان ہے کہ جس شخص نے ایک فرض روزہ چھوڑ دیا پھر قیامت تک اس کی قضا میں نفل روزے رکھتا رہا تو ایک روزے کا یہ سارے روزے بدلہ نہیں ہو سکتے۔ حضرت علی ہی کا فرمان ہے کہ جس شخص نے ایک فرض روزہ چھوڑ دیا پھر قیامت تک اس کی قضا میں نفل روزے رکھتا رہا تو ایک روزے کا یہ سارے روزے بدلہ نہیں ہو سکتے۔ حضرت علی فرمانے لگے اپنے رب کے علاوہ کسی سے امید وابستہ نہ کرنا، اور فرمایا اگر ڈرنا ہوا نا کبھی تو اپنے گناہوں سے ڈرنا، امیدیں اپنے رب سے، اس سے مانگو، اس کے حضور بیٹھو، اس کی ذات پر تم اپنی امیدیں وابستہ کرو، وہ تمہیں نوازے گا، وہ تمہیں دے گا، اور اپنے گناہوں سے ڈرو۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے تجھے جو چیز تباہ کرے گی وہ تیرے گناہ ہیں، ڈر اپنے گناہوں سے۔ اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو کسی اجنبی شخص سے نرم لہجے میں بات نہ کرو تاکہ وہ شخص جس کے دل میں کسی طرح کا روگ ہے کوئی امید نہ پیدا کر لے، اور دستور کے مطابق بات کیا کرو، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اور جس طرح پہلے جاہلیت کے دنوں میں زیب و زینت کی نمائش کی جاتی تھی اس طرح اظہار زینت نہ کرو، اور نماز پڑھتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتی رہو۔ حضرت مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں جناب عمر فاروق کا زمانہ تھا، میرا بڑا دل کرتا تھا مجھے حضور کی زیارت ہو، میں درود پاک پڑھتا سو گیا، میرے نصیب دیکھو کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ اللہ کے محبوب نہ فجر کی جماعت کرا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرائی اور غلاموں کی طرف رخ نور پھیرا، ایک صحابی کے باغ میں تازہ کھجوریں پکی تھیں، وہ صحابی ٹوکرے میں ڈال کے حضور کی بارگاہ میں لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور اٹھائی اور اٹھا کے منہ میں رکھی، پھر حضور صحابہ کو دینے لگے، فرماتے ہیں قربان جائیں نمبر میرا بھی لگ گیا، کھجور کھائی، کچھ کھجور کا مزہ تھا، کچھ دست مصطفیٰ کا مزہ تھا، فرماتے ہیں بڑا ہی مزہ آیا، بڑا ہی سرور آیا، دل کرتا تھا کھجور ایک اور ملے، لیکن سب کو ایک ایک مل رہی تھی، ادب کا تقاضا یہی تھا کہ میں بھی دوسری کا سوال نہ کروں، ابھی کھجور کھا ہی رہا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی، فجر کی اذان ہو گئی، فرماتے ہیں میں اٹھا تو کھجور کا ذائقہ ابھی بھی میرے منہ میں موجود تھا، فرماتے ہیں دل گرفتہ، دل کرتا تھا آئی یا رات وصال دے والی تے ربا رات مکن نہ دیویں،
कहते हैं भारा दिन चढ़ गया, अजान फजर हो गई, सुबह सादिक तुलू हो गई, मैं उठा, वुजू किया, सुन्नत अदा की, मस्जिद में जाके नमाज के इंतजार में बैठ गया। फरमाते हैं फारूक आजम जमात कराने आए। इत्तेफाक देखें कि हजरत उमर ने भी वही सूरतें नमाज में शुरू कर दी जो रात ख्वाब में हुजूर ने नमाज के अंदर पढ़ी। मैं समझा ये इत्तेफाक है, लेकिन जनाब फारूक आजम ने जब नमाज पढ़ा के सलाम फेर के लोगों की तरफ रुख किया तो खजूरों का टोकरा भी आ गया। मैंने समझा ये भी इत्तेफाक है। फरमाते हैं उमर ने एक खजूर उठाई और बाकी बांटने लगे, और उमर ने एक खजूर मुझे भी दी। खजूर मैंने खाई, मजा मुझे बड़ा आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो अदब की वजह से नहीं मांगी थी। उमर तो अपना दोस्त था, अपना यार था, मुझसे हर काम में मशवरा लेता था। कहते मैंने फौरन कहा उमर जरा एक देना, एक खजूर और देना। फरमाते हैं फारूक आजम ने उठाई, मैं समझा मिलने लगी है, उठाई, और जब हजरत फारूक आजम ने खजूर बढ़ाई और पकड़ा किसी दूसरे सहाबी को दी और मुस्कुरा के मेरी तरफ देखा, फरमाने लगे अली यूं तो ना कर यार, अगर रात को तू हुजूर से दूसरी लेता तो मैं भी सवेरे तुझे दूसरी दे दे। अगर हुजूर से रात दूसरी लेते तो मैं भी तुम्हें सवेरे दूसरी दे देता। खाब मेरी विचाया माही ते मैं गल विच पा लिया बावां, लोग को डर दी मारी अख भी ना खोला किते फिर विछड़ ना जा। खुतबा जुमा हो रहा था तो जनाबी अली अल मुर्तजा ने जुमा रोक के फरमाया, बताओ भाई मुसलमानों सबसे बहादुर कौन है, बताओ। लोगों ने कहा हुजूर आप ही सबसे बहादुर है, जमाना जानता है। तो जनाबी अली रो पड़े, फरमाने लगे नहीं मैं तुम्हें बताता हूँ बहादुर कौन। जनाबी अली अल मुर्तजा फरमाने लगे मैं बताता हूँ बहादुर कौन है। जनाब कौन है? फरमाने लगे एक दिन ऐसा भी आया कि मक्के के सारे सरदार इकट्ठे होके महबूब पाक पे हमला करने लगे, हुजूर को गिरा लिया नबी पाक। कहते हैं हजरत अली के कुफारे मक्का ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरा लिया और माज़अल्लाह तशद्दुद करने लगे। फरमाते हैं कोई जोर जोर से पुकार रहा था, मेरे कानों में आवाज आई जब मैं घर में था, कोई जोर जोर से पुकार रहा था। और वो क्या कह रहा था? कोई अबू बकर को खबर करो, कोई सिद्दीक अकबर को बताओ कि कुरैश मक्का महबूब अलैहिस्सलाम को तकलीफ दे रहे हैं, बताओ। हजरत अली कहते हैं जब तक मैं बाहर निकला तो मैंने अबू बकर को दौड़ते हुए देखा, सिद्दीक अकबर के पैरों में जूता कोई नहीं, सर पे टोपी कोई नहीं, तेनू लब दिया आप गवाचे, सानू अपनी खबर नहीं कोई। कहते हैं भागते जा रहे हैं। और फिर जब सिद्दीक अकबर पहुंचे तो मैं दौड़ा आ रहा था और मंजर देख भी रहा। और पता मेरे नबी पाक ने क्या फरमाया? फरमाया मुझे मेरे रब ने हुक्म दिया है कि मैं 4 लोगों से प्यार करूं। हुजूर किससे? तो पहले 3 मरतबा नबी पाक ने एक ही शख्स का नाम लिया, फरमाया अली से, अली से, अली से, फिर फरमाया अबू ज़र गिफारी से, फिर फरमाया जनाब मिक़दाद से, फिर फरमाया सलमान फारसी से। हज़रत अली कहते हैं मेरा कद छोटा था और मैं बच्चा था, अभी 7-8 साल उम्र थी। अल्लाह के रसूल मेरे सहन के अंदर घुटनों के बल बैठ गए और फरमाया अली आजा यार सीने से लग जा। तो हजरत अली कहते हैं मैं दौड़ के गया, दौड़ के मैंने जाके सीना रसूलुल्लाह के सीने से लगाया। हजरत अली फरमाते हैं ये मेरा मकाम है। 8 साल की उम्र में सीना लगाया था और जब रसूलुल्लाह को कब्र में उतारा फिर भी मेरा ही सीना मुस्तफा के सीने से लगा हुआ। जब खैबर फतह हुआ ना, हजरत मौला अली ने एक हाथ से खैबर का दरवाजा तोड़ा, यानी दीवारें हिलती रहती हैं और दर कांप जाता है। अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। हजरत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खैबर फतह किया। फतह खैबर की खुशियां मनाई जा रही थी। हजरत जाफर तैयार भी हबशा से हिजरत करके मदीने आ गए, कहने लगे वहीं रहेंगे, गुलाम फरीदा होते की वसना जिते यार नजर ना आवे। यहाँ आ गए हिजरत करके। अब जरा बात सुनना कितनी मजेदार है। हजरत जाफर आए, हुजूर उठे, सीने से लगाया, यूं पेशानी पे ना यहाँ नबी पाक ने बोसा दिया। और पता है हुजूर क्या फरमाते हैं? कुर्बान जाऊं महबूब के लफ्जों पर। हुजूर फरमाने लगे समझ नहीं आ रही मुझे। या रसूलल्लाह किस बात की? फरमाया समझ नहीं आ रही कि मुझे खैबर फतह होने की ज्यादा खुशी है या जाफर के आने की ज्यादा खुशी है। कुछ समझ नहीं आ रही, खुशी किस बात की है? इनके आने की ज्यादा है या खैबर फतह होने की? देखो इस शख्स का नसीबा कितना ऊंचा है, देखो बुलंदी कितनी ज्यादा। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं दोस्ती का भरम सिर्फ वही लोग रख सकते हैं
जिनके वजूद में समंदर जितना दिल हो। मौला अली का फरमान है कि जिस तरह इंसान के अंदर से जान निकल जाए तो वो जिंदा नहीं रहता, बिल्कुल इसी तरह अगर इंसान के अंदर से एहसास निकल जाए तो वो इंसान नहीं रहता। हजरत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाह ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, जनाब उमर फारूक का ज़माना था, मेरा बड़ा दिल करता था मुझे हुजूर की ज़ियारत हो। मैं दुरूद पाक पढ़ता सो गया। मेरे नसीब देखो कि मैं ख्वाब देखता हूँ कि अल्लाह के महबूब ना फजर की जमात करा रहे हैं। फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात कराई और गुलामों की तरफ रुखे नूर फेरा। एक सहाबी के बाग में ताज़ा खजूरें पकी थी, वो सहाबी टोकरे में डाल के हुजूर की बारगाह में लाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खजूर उठाई और उठा के मुंह में रखी, फिर हुजूर सहाबा को देने लगे। फरमाते हैं कुर्बान जाए नंबर मेरा भी लग गया। खजूर खाई, कुछ खजूर का मजा था, कुछ दस्ते मुस्तफ़ा का मजा था। फरमाते हैं बड़ा ही मजा आया, बड़ा ही सुरूर आया, दिल करता था खजूर एक और मिले, लेकिन सबको एक एक मिल रही थी। अदब का तकादा यही था कि मैं भी दूसरी का सवाल न करूं। अभी खजूर खा ही रहा था कि मेरी आंख खुल गई, फजर की अजान हो गई। फरमाते मैं उठा तो खजूर का जायका अभी भी मेरे मुंह में मौजूद था। फरमाते हैं दिल गरिफ्ता, दिल करता था आई या रात विशाल देवाली ते रब्बाए रात मुक्कन ना देवी। कहते हैं भारा दिन चढ़ गया, अजान फजर हो गई, सुबह सादिक तुलू हो गई। मैं उठा, वुजू किया, सुन्नत अदा की, मस्जिद में जाके नमाज के इंतजार में बैठ गया। फरमाते हैं फारूक आजम जमात कराने आए। इत्तेफाक देखें कि हजरत उमर ने भी वही सूरतें नमाज में शुरू कर दी जो रात ख्वाब में हुजूर ने नमाज के अंदर पढ़ी थी। मैं समझा ये इत्तेफाक है, लेकिन जनाब फारूक आजम ने जब नमाज पढ़ा के सलाम फेर के लोगों की तरफ रुख किया तो खजूरों का टोकरा भी आ गया। मैंने समझा ये भी इत्तेफाक है। फरमाते उमर ने एक खजूर उठाई और बाकी बांटने लगे, और उमर ने एक खजूर मुझे भी दी। खजूर मैंने खाई, मजा मुझे बड़ा आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो अदब की वजह से नहीं मांगी थी। उमर तो अपना दोस्त था, अपना यार था, मुझसे हर काम में मशवरा लेता था। कहते मैंने फौरन कहा उमर जरा एक देना, एक खजूर और देना। फरमाते हैं फारूक आजम ने उठाई, मैं समझा मिलने लगी है, उठाई, और जब हजरत फारूक आजम ने खजूर बढ़ाई और पकड़ा किसी दूसरे सहाबी को दी और मुस्कुरा के मेरी तरफ देखा, फरमाने लगे अली यूं तो ना कर यार, अगर रात को तू हुजूर से दूसरी लेता तो मैं भी सवेरे तुझे दूसरी दे दे। अगर हुजूर से रात दूसरी लेते तो मैं भी तुम्हें सवेरे दूसरी दे देता। खाब मेरी विचाया माही ते मैं गल विच पा लियां बावां, लोग को डर दी मारी अख भी ना खोला किते फिर विछड़ ना जा। एक शख्स ने पूछ लिया हज़रत मौला अली से कि हुजूर ये आपका रंग अनोखा है कि गर्मियों के अंदर आप इतने भारी कपड़े पहन लेते हैं कि देख देख के गर्मी लगती है, तो आपको गर्मी सर्दी का एहसास नहीं होता? हज़रत मौला अली शेर खुदा फरमाने लगे मुझे मेरे नबी पाक ने दुआ दी, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे दुआ दी थी। फरमाया था ऐ अल्लाह इसे गर्मी और सर्दी से महफूज रख। हज़रत अली फरमाने लगे मेरी 5 बातें याद कर लो, और फरमाने लगे ऊंटों पर बैठकर तलाश करने निकलोगे तो ये बातें तुम्हें मिलेंगी कहीं भी नहीं। हजरत अली बातें बयान करते हैं, फरमाते हैं पहली बात ये याद रखना, बंदे को उम्मीद सिर्फ अपने रब से रखनी चाहिए। हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु दूसरी बात बयान करते हैं, फरमाते हैं अपने गुनाहों से डरा करो। तीसरा मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अगर तुम जाहिल हो ना, तुम्हें पता नहीं, तो इल्म के बारे में सवाल करने से कभी ना शर्माना। पूछ लेना फायदा होगा, किसी से बात कर लेना फायदा होगा, किसी से सीख लेना नफा हो जाएगा, किसी को मान लेना अपना उस्ताद, जिंदगी भर समझदार हो जाओगे, फैज याब हो जाओगे। और हजरत अली शेर खुदा चौथी बात इरशाद फरमाते हैं ये उलमा के लिए, फरमाया अगर आलिम को किसी मसले का इल्म ना हो तो गलत बात ना बताए, बल्कि कह दे वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। और 5वीं बात हजरत अली शेर खुदा इरशाद फरमाते हैं याद रखना, ईमान में सब्र की वही हैसियत है जो जिस्म में सर की हैसियत।
حضرت علی فرمانے لگے اپنے رب کے علاوہ کسی سے امید وابستہ نہ کرنا، اور فرمایا اگر ڈرنا ہوا نا کبھی تو اپنے گناہوں سے ڈرنا، امیدیں اپنے رب سے، اس سے مانگو، اس کے حضور بیٹھو، اس کی ذات پر تم اپنی امیدیں وابستہ کرو، وہ تمہیں نوازے گا، وہ تمہیں دے گا، اور اپنے گناہوں سے ڈرو۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے تجھے جو چیز تباہ کرے گی وہ تیرے گناہ ہیں، ڈر اپنے گناہوں سے، ڈر اپنی غلطیوں سے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا تھا حضور پیسے کوئی نہیں، فرمایا سجن وفادار ہیں۔ عرض کی حضور ہیں تو وفادار، فرمایا پھر چھوڑ پیسوں کو، سب سے قیمتی اچھے دوست ہوتے ہیں، سب سے قیمتی دولت، انہیں سنبھال کے رکھ، ضائع نہ کر بیٹھنا۔ مولا علی فرماتے ہیں اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو اور اکیلا رہنا سیکھو۔